مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ اتر پردیش کا مظفر نگر علاقہ جہاں ایک ٹیچر پر فرقہ وارانہ تبصرہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، گزشتہ 9 سال سے بی جے پی دور حکومت کا یہ نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ معصوم بچوں کے ذہنوں میں یہ پیام مسلط کیا جا رہا ہے، کسی مسلمان کو کوئی بھی مار پیٹ سکتا ہے اور اس کی توہین کر سکتا ہے اور اسے نتائج کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بچے کے والد نے اپنے بچے کو اسکول سے نکال لیا ہے اور یہ لکھ کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں انصاف نہیں ملے گا اور اس کے بجائے ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو اپنے بچے کے لیے باپ کے انصاف مانگنے پر ماحول خراب کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت پر یہ الزام ہے کہ لوگوں کو قانونی کارروائی پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ٹیچر کو سزا ملنے کے بجائے کوئی سرکاری ایوارڈ مل جائے۔ این سی پی سی آر کو انصاف کو یقینی بنانے کے بجائے ویڈیو کو وائرل کیے جانے پر زیادہ تشویش ہے۔ یو پی میں جرائم اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے والوں کے خلاف بلڈوزر کے استعمال کا حوالہ دیتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نے آدتیہ ناتھ سے کہا کہ آخر بلڈوزر کہاں چلے گئے اور ٹھوک دو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے۔ کل جو ویڈیو عوام کے درمیان میں آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ 24 اگست کا یہ ویڈیو ہے، مظفر نگر کے نیہا پبلک سکول اور گاؤں کلباپور کا ایک ویڈیو ہے جس میں اسکول کی پرنسپل جن کا نام محترمہ ترپتی تیاگی ہے، اس ویڈیو میں بیٹھ کر ایک مسلمان لڑکے کو جس کی عمر 7 سال ہے، پرنسپل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس محمدن بچے کو مارو، اور باری باری سے آ کر اسی کلاس کے اس کے بچے اسکول کے اس کلاس میٹس آ کر اس مسلمان لڑکے کو تھپڑ مارتے ہیں۔ تو محترمہ پرنسپل صاحبہ کہتی ہیں کہ تم اس کو زور سے مارو۔ تو یہ ایک بدترین ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم تمام کو تکلیف ہوئی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے 9 سال میں جو نفرت کی سیاست بی جے پی کر رہی ہے اور اسی کا خمیازہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے غریب عوام، خاص طور سے مسلمان، دلت اس کا شکار ہو رہے ہیں، اس نفرت کا۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار ہے، انہی کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کی جو پالیسیز رہی ہیں اس کی وجہ سے آج ٹیچرز میں بھی یہ نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہی کلاس کے بچوں سے کہہ کر مذہب کی بنیاد پر، سمودائے کی بنیاد پر بچوں کو مارنے لگاتے ہیں، اور یہ کہہ کر مارتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق یہ مسلمان ہے، اس کو مارو پیٹو، زور سے مارو اس کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفرت کہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ نفرت کا ذمہ دار کون ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا، اس نفرت کا ذمہ دار بھارتیہ جنتا پارٹی ہے۔ اس نفرت کا ذمہ دار وہ تمام سیکولر پارٹیز ہیں جو صرف ہندو ووٹ کو ناراض نہیں کرنے کے لیے گونگے بن جاتے ہیں، اندھے بن جاتے ہیں۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ نفرت رکے گا نہیں تو اس سے ملک کمزور ہوگا۔ آخر جب ہم چندرائن کو چاند پر، ساؤتھ پول پر اس کو لینڈ کر سکتے ہیں تو پھر بتائیے نفرت کیا ہے یہ؟ اور ہم جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں سب سے کم اگر آپ دیکھیں گے انرولمنٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا انرولمنٹ ہوتا ہے۔ پری پرائمری لیول پر مسلمانوں کا خالی 15.1% انرولمنٹ ہے، ہمارے دلت بھائیوں کا 14.6 ہے، او بی سی بھائیوں کا 45.5% ہے۔ پرائمری لیول پر آپ آ جائیے تو 17.4 مسلمانوں کا ہے، 26.7 دلت بھائیوں کا ہے، 54.2 ہمارے او بی سی بھائیوں کا ہے۔ اور جو پرائمری لیول پر جو ایجوکیشن لیول ہے کتنا ہے وہ بتا دیجیے آپ؟ مسلمانوں کا سب سے کم ہے۔ ایجوکیشن مڈل لیول پر آپ آ جائیے، مسلمانوں کا 16.8% ہے اتر پردیش میں، اور جنرل پاپولیشن کا 25.5% ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ 74% اتر پردیش کے مسلمان کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، اور اتر پردیش میں صرف
4.4% मुसलमानों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है। और ये हाल है तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में। उसके बाद ये नफरत के मुजाहरे स्कूल में किए जाते हैं। मैं आज सुबह में उस लड़के के पिता से, वालिद से मैंने फोन करके बात की। मैं अपने गम और अपनी तकलीफ का इजहार उस लड़के के वालिद से किया, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब उसके वालिद ने कहा कि गांव का माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए हमसे कहा गया कि हम कंप्लेन ना करें। आप बताइए, हम इस मुल्क को किस दहाने पर ला चुके हैं कि एक बाप अपने बेटे की बेइज्जती, उसकी मार, उसकी जो पीटा गया, उसकी इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ने दिया जा रहा है। उसको कहकर मजबूर कर दिया गया कि माहौल खराब हो जाएगा। क्या इस देश में एक बाप अपनी बेटी की इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकता? कौन सा माहौल खराब होगा बताइए आप? माहौल किसका खराब होगा? माहौल उन लोगों का खराब होगा जो नफरत फैला रहे हैं। आज एक बाप अपनी बेटे की इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसकी स्कूल में तालीम की उसको हासिल करने की लड़ाई नहीं लड़ सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस मुझे तकलीफ है कि ये माहौल नफरत का बढ़ता जा रहा है, और ऐसे माहौल में हमको इंसाफ की लड़ाई लड़ने से भी रोका जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर रिएक्ट करेंगे। और बड़ी तकलीफ मुझे हो रही है कि एक बेलेबल सेक्शन लगा दिया गया टीचर पर। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो साफ कहता है कि सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो लगाना चाहिए उनके ऊपर। 5 साल की सजा का प्रोविजन उसमें है, मगर टीचर पर नहीं लगाया गया। लगाते आप ताकि अब उनकी बेल भी हो गई है। ये आपका इंसाफ है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का? कहां गया आपका बुलडोजर? कहां गया आपकी ठोक दो की पॉलिसी? क्या आपके बुलडोजर ठोक दो की पॉलिसी सिर्फ समुदाय को देखकर चलेगा? क्या आपकी ठोक दो की पॉलिसी समुदाय देखकर इस्तेमाल होगी? जिंदगी भर का एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उस मासूम बच्चे पर पड़ चुका है। मैं उनके वालिद से आज सुबह में बात करके उनसे मैं रिक्वेस्ट किया कि आप अपने बच्चे की तालीम को जारी रखने के लिए आप हैदराबाद भी जाइए, हम हैदराबाद में उसको तालीम दिलाएंगे। तो उस वालिद ने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब आपका शुक्रिया, मगर मेरे बेटे की उम्र 7 साल की है। आप अंदाजा लगाइए, जो कोई भी मेरी इस बात को सुन रहा है, सोचिए आपके पेट में भी औलाद है। अल्लाह ने आपको भी औलाद दी है, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, कुछ भी हो। अगर आपके बेटे से इस तरह का बर्ताव किया जाता, आपकी बेटी से इस तरह का बर्ताव किया जाता, और उसका वीडियो पूरे देश में, पूरी दुनिया में वायरल हो जाता, आप कभी आराम की नींद सो सकते हैं? हाँ, वो लोग आराम की नींद सो सकते हैं जिनके दिलों में मुसलमानों की नफरत भरी हुई है, जिनके दिलों में इंसानियत नहीं है, जिनके दिलों में शैतानियत भरी हुई है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तकलीफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस प्रिंसिपल को बचाने के लिए, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, उन पर आपने बेलेबल सेक्शन लगा दिए। मुझे 1930 का जर्मनी याद आ रहा है, जब 1930 के जर्मनी में यहूदी बच्चों से, छोटे मासूम बच्चों से, उनके हाथों से उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता कि तुम लिखो अपने हाथों से कि यहूदी जर्मनी के लिए बड़ा खतरा है, होशियार रहो। आज वही हाल भारत के मुसलमानों से किया जा रहा है। अब सिर्फ क्या क्रिस्टल नाक मूवमेंट होना बाकी है? वही हाल पे हम उसी रविश पर चल रहे हैं। ये हमारी देश के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। आप बताइए कौन सा विकास है? एक वर्दी पहनने वाला हथियार से नाम पूछकर कत्ल कर देता है, एक टीचर गोली चलाई जाती है, नाम पूछकर घरों को तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर इस्तेमाल किया जाता है। ये नफरत का खात्मा होना जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि नफरत का खात्मा होगा। मैं आप तमाम से यही अपील करने के लिए आपके दरमियान में आया हूं कि हमको इस नफरत के खिलाफ बेबाकी से मुकाबला करना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझ पर लाख इल्जाम लगा लो, याद रखो हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक आप मुस्लिम समुदाय अपनी एक सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएगा। एक वीडियो देखकर तुम रोते हो, नूह के बर्बाद हुए घरों को देखकर तुम रोते हो,
बुलडोजर चलता हुआ तुम अपनी आंख में आंसू लाते हो। अरे ये बुजदिली के मुजाहरे करना छोड़ो, रोना छोड़ो, एक सियासी ताकत बनो, हिम्मत दिलाओ अपने आप को, नाउम्मीदी को पे खरीब आने मत दो। ये हाल हो रहा है, अगर आज भी आप बेदार नहीं होंगे तो क्या सुबह क़यामत में आप बेदार होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेबाकी से अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। और बेखौफी किसको कहते हैं? आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अल्तमश नाम के बच्चे को टीचर के कहने पर मारा गया, मगर हैदराबाद में, आज हैदराबाद में, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, चंद्रायन गुट्टा असेंबली सेगमेंट में जिसके एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी है, उनकी नुमाइंदगी पर, उनके रिप्रेजेंटेशन पर तेलंगाना की केसीआर की सरकार ने एक तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बनाया। आपको जानकर खुशी होगी कि यहां पर आपकी एक सियासी ताकत है, एक लीडरशिप है। हमने ये तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बनवाया अकबरुद्दीन ओवैसी ने। यहां के इस रेजिडेंशियल माइनॉरिटी कॉलेज के 5 बच्चे नीट क्वालिफाई करके उनको गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। आज दारुसलाम एमआईएम हेडक्वार्टर पर मैंने उन 5 बच्चों को बुलाया। आपको मालूम होकर, जानकर खुशी होगी कि एक बच्चे का नाम गौतम राज है, मुसलमान नहीं है, वेमलूवाड़ा का रहने वाला है, ओल्ड करीमनगर डिस्ट्रिक्ट का। और फिर ताहिर शरीफ है, परवेज है, जैनब है और मोहम्मद शरीफ है। इसमें से एक लड़के के वालिद तरकारी बेचते हैं, क्योंकि हमने उसको स्कूल में उसको मौका मिला, वो तालीम हासिल किया। तरकारी बेचने वाला एक लड़का आज एमबीबीएस करने जा रहा है। एक लड़का मुझसे कह रहा था कि उसके वालिद बीमार रहते हमेशा, बिस्तर पर फरीश है, उसको मौका मिला। हमने इन 5 को बुलाया, 5 को बुलाकर हमारे दारुसलाम चैरिटेबल ट्रस्ट से एक को 25,000 रुपए का चेक दिया और उनसे कहा कि बेटा 5 साल तुम तालीम हासिल करो, इन हमारी बेटियों से भी तालीम हासिल करो, डॉक्टर बनो, हम 5 साल तुम्हारी मदद करेंगे जो हमसे हो सकेगा, मगर तुम खूब काबिल बनो। ये फायदा आप देखते हैं। अरे लाख मुझ पर इल्जाम लगा लो, मगर ये काम तो देखो। तुम लाख गाली दे दो टीआरएस को, केसीआर को, असदुद्दीन ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को, मगर ये काम हमने करके दिखाया कि गवर्नमेंट से हमने रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बनाया बारकस में। वहां के 5 गरीब परिवारों के बच्चे, जिसका नाम है गौतम राज है, ताहिर शरीफ है, मोहम्मद परवेज है, मोहम्मद शरीफ है, जैनब है, ये गरीब परिवारों के बच्चे आज मेडिसिन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? मारा जा रहा है टीचर से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप खुद महसूस करिए, मगर अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम उम्मीद करें या ना करें मुझे नहीं मालूम, मगर देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। इस टीचर को आप अरेस्ट करवाइए। और बोला जा रहा है कि वो मोहतरमा हैंडीकैप है। अरे दुनिया जानती है कि जो हैंडीकैप होता है वो इंसानों से और हमदर्द होता है। ये कैसा मिजाज है? मगर ये सब नतीजा है नफरत की राजनीति का, जिसका खमियाजा आज भारत में मुसलमान दलित इसको झेल रहा है। बस यही पैगाम मुझे देना था आप तमाम तक। मगर बेखौफ रहकर अपना काम करिए, नाउम्मीदी को अपनी करीब आने मत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।